Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video we'll learn about the normal forms in Theory of Computation. So basically there are two normal forms, Chomsky normal form and Grayback normal form. So let's begin. Now before defining the properties and before studying about the normal forms, अब जिस तरीके से हमने रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था एंड उसके बारे में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी थी दैट वेदर रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर कॉनकैटिनेशन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन, यूनियन, सो बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं उसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के बारे में भी हम उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. बट बिफोर डिफाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हमारे लिए पहला टास्क होता है कि जो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ी है उनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाएं so that जब हम इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करें that is a slightly easier task for us. So before going on to the normal form and before going on to the properties of the context free languages, हमारा पहला टास्क है कि जो context free grammar है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाएं. So let's understand what all simplifications जो we need to do और हमें कौन कौन सी simplifications अपने context free grammar में करनी है. So the first thing that we need to do is, the first simplification that we need to do is eliminate all useless symbols. So basically useless symbols हमारे वो होते हैं ऐसे symbols, those variables or terminals that do not appear in any derivation of a terminal string from the start symbol. तो इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे और इनसे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो यूजलेस सिंबल्स का मतलब होता है ऐसे सिंबल्स जो कहीं पे भी हमारी डेरिवेशन में नहीं आ रहे हो या कहीं पे भी जब हम स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करते हैं तो कहीं पे भी वो टर्मिनल्स जो हैं वो अपीयर ना हो रहे हो या नॉन टर्मिनल्स अपीयर नहीं हो रहे हो, उनको हम कहते हैं यूजलेस सिंबल्स. तो इसको भी हम एग्जांपल से देखेंगे. अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी सिंप्लीफिकेशंस हमें करनी है. तो द फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन इज एलिमिनेट ऑल द यूजलेस सिंबल्स. द सेकंड सिंप्लीफिकेशन इज एलिमिनेट all the lambda productions. So basically lambda productions कौन सी हुई? All those productions which are of the form this. तो जहाँ पे भी कोई नॉन टर्मिनल किसी एप्सिलॉन या लैम्डा को जनरेट कर रहा है that is a lambda productions. So we need to get rid of such productions. That is the second simplification. Eliminate all the lambda productions, that is all productions which are of this form for some variable a. And the third simplification that we need to do is eliminate all the unit productions. Now unit productions कौन सी होती हैं? All the productions which are of this form, where one non-terminal is generating another non-terminal. All such productions come under the category of unit productions. So we need to get rid of such unit productions also. So why we are saying that we need to get rid of unit productions? Let's say हमारे पास कोई context free grammar है, A generate कर रहा है जिसमें B को. Let's say A is my start symbol. B generating some C, C generating some D, D generating some E, E is generating some F, F is generating some I, and I is generating a terminal, let's say A. So basically ये सारी प्रोडक्शंस क्या है? यूनिट प्रोडक्शंस. और अल्टीमेटली हमारा इनसे क्या जनरेट हो रहा है? एक टर्मिनल स्ट्रिंग विच इज ए. तो बेसिकली ये सारी प्रोडक्शंस जो है वो अननेसेसरी की प्रोडक्शंस हैं, राइट? वी आर अननेसेसरी राइटिंग दीज प्रोडक्शंस एंड कॉम्प्लिकेटिंग द ग्रामर वेयर दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. हम सिंपली अगर ये लिख देते दैट ए कैन जनरेट ए, सो हमें ये सारी प्रोडक्शंस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सो दैट इज व्हाई वी से दैट यूनिट प्रोडक्शंस आर यूजलेस प्रोडक्शंस व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड एंड अननेसेसरी दे आर कॉम्प्लिकेटिंग अ ग्रामर. So these three simplifications we need to do in our grammar. First, get rid of all the useless symbols. Second, get rid of all the lambda productions. And the third is get rid of all the unit productions. Now let's take various examples to understand these. Now let's take the first simplification, which is based on eliminating useless symbols. So let's understand what is eliminating useless symbols. Eliminating useless symbols. So eliminating useless symbols begins by identifying two things. तो किसी भी सिंबल को हम कहेंगे कि वो यूजफुल तब है, any symbol is useful
if it satisfies the following two properties. The first property is, we say that X is generating if X derives any W for some terminal W. हम कहेंगे X, अगर X कोई भी नॉन टर्मिनल है, कोई भी नॉन टर्मिनल को हम कहेंगे कि वो जनरेटिंग तब होगा अगर वो किसी टर्मिनल को डिराइव कर रहा हो। अगर वो किसी टर्मिनल को जनरेट कर रहा है तो हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल इज जनरेटिंग, अदरवाइज इट इज नॉट जनरेटिंग। अब ये तो हो गया नॉन टर्मिनल्स के लिए। और जितने भी टर्मिनल्स हैं वो इटसेल्फ ही जनरेटिंग होते हैं। अगर हम कह रहे हैं ए डिराइव कर रहा है, कोई नॉन टर्मिनल डिराइव कर रहा है किसी टर्मिनल ए को, तो क्योंकि ए जो है किसी टर्मिनल को डिराइव कर रहा है तो ए तो जनरेटिंग हुआ ही। साथ ही जितने भी टर्मिनल्स होंगे आपकी प्रोडक्शंस में, पूरी ग्रामर में जितने भी टर्मिनल्स होंगे वो उनको हम कह के चलते हैं दैट दे आर ऑलवेज जनरेटिंग, बिकॉज टर्मिनल्स अपने आप को जनरेट कर रहे हैं, राइट। कोई नॉन टर्मिनल उनको नहीं, कोई नॉन टर्मिनल्स तो टर्मिनल्स को कर ही रहे हैं, बट टर्मिनल्स इटसेल्फ ही जनरेटिंग है बिकॉज वो अपने आप को जनरेट कर रहे हैं। सो एवरी टर्मिनल इज इटसेल्फ जनरेटिंग, एवरी टर्मिनल इज जनरेटिंग। ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो हम कहते हैं कि सिंबल यूजफुल है। दूसरी प्रॉपर्टी सिंबल यूजफुल होने के लिए क्या होती है, वी से X इज रीचेबल इफ देयर इज अ डेरिवेशन S derives some alpha X beta for some alpha beta। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि नॉन टर्मिनल जो होगा वो जनरेटिंग होना चाहिए, वो किसी टर्मिनल को जनरेट करना चाहिए। दूसरा होता है रीचेबिलिटी, कि वो नॉन टर्मिनल रीच होना चाहिए। लेट्स से अगर मेरे पास ग्रामर में इस टाइप की प्रोडक्शन है, S जनरेट्स ए बी, A जनरेट्स A, B जनरेट्स B एंड C जनरेट्स C। बट ये जो C सिंबल है ये तो कहीं से रीच ही नहीं हो पा रहा, हम इस C तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, राइट। सो दिस इज अ यूजलेस सिंबल बिकॉज इस तक आप कभी पहुंच ही नहीं सकते फ्रॉम योर स्टार्ट सिंबल। तो सिंबल यूजफुल होने के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो जनरेटिंग होना चाहिए, किसी टर्मिनल को जनरेट करे। दूसरा, वो स्टार्ट सिंबल से रीचेबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर सिंबल जो है हमारी ग्रामर में यूजफुल है, अदरवाइज वो एक यूजलेस सिंबल है और हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। So, a symbol that is useful will be both generating and reachable. Otherwise, symbol useless and we can eliminate that. Now, let's take an example. Suppose अगर मेरे को grammar given है, S derives A, B, A derives B। अब इस सिंबल में अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी यूजलेस सिंबल है, तो पहली कंडीशन हमें क्या देखनी है कि वो सिंबल क्या पहले जनरेटिंग है या नहीं। तो S जनरेटिंग सिंबल है, S क्या जनरेट कर रहा है, S जनरेट कर रहा है टर्मिनल A को, तो यस S इज जनरेटिंग। A भी जनरेट कर रहा है टर्मिनल B को, तो A इज ऑल्सो जनरेटिंग। बट B जो है किसी टर्मिनल को जनरेट ही नहीं कर रहा, राइट। सो B इज नॉट जनरेटिंग एनीथिंग, तो B वी कैन गेट रिड ऑफ सिंबल B। और टर्मिनल्स कौन कौन से, ए बी, ये तो टर्मिनल्स तो हमेशा हम कह के चलते हैं दैट दे आर ऑलवेज जनरेटिंग। तो द ओनली यूजलेस सिंबल जो अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे वो है बी सिंबल। तो वी कैन गेट रिड ऑफ बी, हम बी हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस डिराइव्स ए एंड ए डिराइव्स बी। सेकेंड कंडीशन हमें क्या देखनी थी, तो हमें क्या करना है, पहले आप जनरेटिंग देखो। जनरेटिंग अगर वो सिंबल नहीं कर रहा किसी पर्टिकुलर टर्मिनल को तो आप उस सिंबल को हटा सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास ग्रामर आई, अब हमें देखना है रीचेबिलिटी। तो एस हमारा डिराइव कर रहा है ए को, बट ये जो सिंबल ए है नॉन टर्मिनल है, इस तक तो आप कभी पहुंच ही नहीं सकते, एस इस तक रीचेबल ही नहीं है ये। सो सिंबल ए इज अ यूजलेस सिंबल, सो इसको भी हम हटा सकते हैं। सो आफ्टर एलिमिनेटिंग द यूजलेस सिंबल विल बी ओनली लेफ्ट विद दिस ग्राफ। सो बेसिकली जब हम ये हम रूल अप्लाई करें दैट एलिमिनेटिंग यूजलेस सिंबल, तो हमारी ग्रामर को चेंज नहीं कर रहा, वी आर ओनली गेटिंग रिड ऑफ दो सिंबल्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड and basically they are useless symbol in terms of reachability and generation. So first हमें first eliminate करना है, हमें first eliminate the non generating symbols
First, eliminate non-generating symbols, and second, eliminate non-reachable symbols. Reachable symbols. So ये तो हमारा था पहली simplification, which was eliminating the useless symbol from our grammar. The second simplification that we'll do is eliminating all the lambda productions. So second simplification is eliminating epsilon productions. So epsilon and lambda means the same thing. Eliminating epsilon productions. तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है which variables are nullable. nullable होने का क्या मतलब है? किसी भी वेरिएबल को हम कहेंगे कि वो nullable तब है अ वेरिएबल b, any variable b is a nullable symbol if b जनरेट कर रहा है लैम्डा को, राइट? तो किसी भी वेरिएबल से, किसी भी नॉन टर्मिनल से जब आप लैम्डा जनरेट कर पा रहे हो तो वो सिंबल हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? नलेबल सिंबल बन जाता है. तो हमें सबसे पहले लैम्डा प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है जो हमारी पूरी ग्रामर में नलेबल है, राइट? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस. सपोज अगर मेरे पास कोई ग्रामर गिवन है लाइक s derives as, s derives a and s derives c, then a derives a, b derives aa, c derives a, c b. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि यूजलेस सिंबल्स हमारे कौन से हैं, राइट? तो इस प्रोडक्शन, इस ग्रामर में हमारी कोई लैम्डा प्रोडक्शन तो है ही नहीं, राइट? सो यहाँ पे नलेबल वेरिएबल तो कोई नहीं होगा. सो लेट्स से हम इसमें से यूजलेस सिंबल्स हटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कोई इसमें यूजलेस सिंबल है या नहीं. तो सबसे पहले यूजलेस सिंबल्स के लिए हमें देखना है कि जनरेटिंग सबसे पहले है या नहीं. तो ए जनरेट कर रहा है टर्मिनल ए को, बी जनरेट कर रहा है टर्मिनल ए को, सी आपका किसी टर्मिनल को जनरेट नहीं कर रहा, तो सी इज अ नॉन जनरेटिंग सिंबल. सिमिलरली एस से भी आप एस से जनरेट कर, एस आपका ए को जनरेट कर रहा है, ए से आपका टर्मिनल जनरेट हो रहा है, तो एस भी हम कह रहे हैं कि वो टर्मिनल को जनरेट कर रहा है. तो सी इज द ओनली सिंबल विच इज नॉट जनरेटिंग एनीथिंग, सो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रोडक्शन. सो हटा देते हैं इसको हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? ए एस ए डेराइव्स ए, बी डेराइव्स ए, राइट? अब हमें देखना है अब हमें रीचेबिलिटी देखनी है. तो हम एस से तो ए तक पहुंच पा रहे हैं, क्या हम एस से बी तक पहुंच पा रहे हैं? नो, वी कैन नॉट रीच सिंबल बी फ्रॉम एस. सो सिंबल बी इज अ नॉन रीचेबल सिंबल, सो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस. So after eliminating non-generating and non-reachable symbol from this grammar, we are left with this. So this is our final answer. Now अब एक एग्जाम्पल लेते हैं लैम्डा प्रोडक्शन का. सपोज अगर हमें क्वेश्चन गिवन है S derives AB, A derives AA epsilon and B derives B, BB epsilon. तो स्टेप लैम्डा प्रोडक्शन को हटाने के लिए हमारा पहला स्टेप है फर्स्ट फाइंड आउट द नलेबल सिंबल्स. तो हमारे कौन कौन से नलेबल सिंबल्स हैं इसमें? ए तो लैम्डा को जनरेट कर रहा है तो ए तो नलेबल है ही, बी भी लैम्डा को जनरेट कर रहा है, बी इज ऑल्सो नलेबल, तो ए इज ऑल्सो नलेबल, बी इज ऑल्सो नलेबल. अब हम देखेंगे अगर ए की जगह मैं यहाँ पे एस डिराइव कर रहा है ए बी को, राइट? अगर मैं एस ए की जगह लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दूं, इस बी की जगह भी लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो हमारा एस भी हम कह सकते हैं बेसिकली लैम्डा जनरेट कर रहा है, राइट? सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स हु आर जनरेटिंग द लैम्डा, when we substituted that, we found out that s is also a nullable variable. So I have 3 nullable variables in this. So basically हमें इसमें ध्यान से देखना है जो डायरेक्टली नल को जनरेट कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट अगर कोई ऐसी प्रोडक्शंस है जिसमें वो वेरिएबल्स आ रहे हैं जो आपके लैम्डा को जनरेट कर रहे हैं और जब आप उनमें लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, देन यू आर लेफ्ट विद नथिंग. सो बेसिकली दैट वेरिएबल विल आल्सो बी काउंटेड एज अ नलेबल वेरिएबल. तो बेसिकली ये डायरेक्ट नलेबल है, ये इनडायरेक्ट नलेबल है. सो हमारे तीनों वेरिएबल्स इसमें नलेबल है, ए बी, बी बी एंड एस बी. तो स्टेप 1 तो था नलेबल सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना.
स्टेप 2 क्या कहता है लैम्डा प्रोडक्शन को हटाने के लिए? रिमूव लैम्डा प्रोडक्शन आफ्टर adding new productions obtained by substituting epsilon for S where it occurs on the right। तो इसमें हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आपने नलेबल सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, देन रिमूव द लैम्डा प्रोडक्शंस आफ्टर एडिंग न्यू प्रोडक्शंस ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा फॉर एस वेयर इट अकर्स ऑन द राइट। तो हमें क्या करना है? नलेबल सिंबल्स पे आप जाओ और जहां जहां पे भी वो सिंबल्स अपीयर हो रहे हैं राइट साइड पे, उनकी जगह नल सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जो न्यू प्रोडक्शंस हमें मिलेगी उनको हमें ऐड करते जाना है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर दिस प्रोडक्शन। सो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं उससे हमारा मेन टारगेट है कि हमारी ग्रामर चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने डायरेक्टली ए डिराइव्स लैम्डा इस प्रोडक्शन को हटा दिया तो हमारी ग्रामर चेंज हो जाएगी, क्योंकि ए डिराइव्स लैम्डा करके जो हमें लेफ्ट ओवर प्रोडक्शंस मिल रही है उनको तो हमने इसमें लिखा ही नहीं। सो ग्रामर चेंज ना हो इसीलिए हम ये स्टेप को कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं ए बी एस तीनों में नलेबल वेरिएबल्स है। अब एक एक करके हम सारी नलेबल वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां पे भी वो अपीयर हो रहे हो, और जो न्यू प्रोडक्शंस हमें मिलेंगे उसको हम ऐड करते जाएंगे। तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं पूरी ग्रामर को। यहाँ पे ग्रामर है एस डिराइव्स ए बी, ए डिराइव्स ए एप्सिलॉन एंड बी डिराइव्स बी बी एप्सिलॉन। ए बी 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 एंड एस बी तीनों नलेबल है। तो सबसे पहले ए वाला देखते हैं। जो ये प्रोडक्शन है इसको तो एज इट इज लिख लो। देन है ए डिराइव्स लैम्डा, तो ए की जगह पहले मैंने लैम्डा सब्स्टिट्यूट करा। अगर मैंने इस वाले ए की जगह लैम्डा सब्स्टिट्यूट करा तो मुझे क्या मिला? ये मिला। देन ये जो सेकंड वाला ए है, अब इसको इंटैक्ट रखो इतने पार्ट को, इस ए की जगह लैम्डा सब्स्टिट्यूट करो तो भी हमें ये मिलेगा। अब हम दोनों को लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस ए को भी इस ए को भी, तो मुझे क्या मिलेगा? ए। तो यही इसका मतलब है सेकंड स्टेप का कि जहां जहां पे भी नल जो भी आपका वेरिएबल नलेबल है राइट साइड में वो वेरिएबल जहां जहां पे अपीयर हो रहा है एक एक करके उसको लैम्डा सब्स्टिट्यूट करते जाओ और जो न्यू प्रोडक्शंस आपको मिल गए उनको ऐड करते जाओ। अब बी के लिए देखते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्शन को तो लिख ही देते हैं। देन बी डिराइव्स लैम्डा, फर्स्ट बी के लिए मैंने लैम्डा सब्स्टिट्यूट करा, मुझे मिला ये। सेकंड बी को मैंने लैम्डा सब्स्टिट्यूट करा, मुझे मिला ये। दोनों बीस को हमने लैम्डा सब्स्टिट्यूट करा, हमें क्या मिलेगा? सिंगल। अब एस पे आते हैं। एस बी नलेबल है, पहले ए बी को तो एज इट इज लिख लेते हैं। ए को नलेबल सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा? बी। बी को नल सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा? ए। दोनों को करेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा, फिर से उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। सो अब जो भी हमारी इसमें रिपीटेटिव प्रोडक्शंस है उनको हम एक एक बार लिख लेते हैं। तो एस डिराइव्स ए बी, ए बी, ए डिराइव्स दिस, बी डिराइव्स सो ये हमारा फाइनल आंसर है आफ्टर एलिमिनेटिंग द लैम्डा प्रोडक्शंस। सो बेसिकली दिस इज नॉट चेंजिंग माई ग्रामर। जो हमारी पहले ग्रामर जनरेट कर रही थी अभी भी वही ग्रामर जनरेट हो रही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है वहां पे लैम्डा जनरेट हो रहा था, अब उस लैम्डा को हमने हटा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने ग्रामर ली एज सपोज हमने ग्रामर ली एज एस डिराइव्स ए बी ए सी, A derives BC, B derives B epsilon, C derives D epsilon, D derives D. Now the question is, find the context-free grammar without the lambda productions equivalent to the grammar which is defined by this. तो हमें सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? नलेबल सिंबल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो B तो नलेबल है ही, डायरेक्टली दिख रहा है। C भी नलेबल है, डायरेक्टली हमें दिख रहा है। और कौन से हमारे वेरिएबल्स नलेबल हो सकते हैं? यहाँ पे बी और सी कहाँ पे अपीयर हो रहे हैं? बी यहाँ पे, बी सी यहाँ पे इकट्ठे अपीयर हो रहे हैं। इन दोनों को लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा ए भी लैम्डा जनरेट कर सकता है, तो ए इज ऑल्सो नलेबल। देन
ए बी सी अगर नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए बच जाएगा, तो एस इज नॉट नलेबल एंड डी भी नलेबल नहीं है। तो ये 3 वेरिएबल्स मेरे नलेबल है, राइट। स्टेप 2, एक एक करके जहां पे भी ये वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं उनको हम नल सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले ए वाली प्रोडक्शन ले लेते हैं जो नलेबल वेरिएबल्स वाली, एस ए डिराइव्स बी सी। तो ए डिराइव्स बी सी में बी सी को तो एज इट इज लिख देते हैं पहले, बी को नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी मिलेगा, सी को नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी मिलेगा। देन बी डिराइव्स बी एज इट इज लिख देते हैं, लैम्डा हटा देते हैं। सी डिराइव्स डी एज इट इज लिख देते हैं, लैम्डा हटा देते हैं। एंड डी डिराइव्स डी एज इट इज लिख देते हैं। अब आते हैं एस पे। सबसे पहले इस प्रोडक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, ए बी ए सी। अब एक एक करके नल सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले ए को नल सब्स्टिट्यूट करा तो हमें क्या मिलेगा, बी ए सी। देन ए को नल सब्स्टिट्यूट करा, देन हम बी को नल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए ए सी। देन सी को नल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बी ए। देन अब दोनों दो दो के पेयर बना के करते हैं। अगर मैंने ए बी को नल सब्स्टिट्यूट करा तो मुझे क्या मिलेगा, ए सी। देन अगर मैंने बी सी को नल सब्स्टिट्यूट करा तो क्या मुझे मिलेगा, ए ए। अगर मैंने ए सी को नल सब्स्टिट्यूट करा तो मुझे क्या मिलेगा, बी ए। और अगर मैंने तीनों को नल सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओनली ए, राइट। तो यही हमारी सारी प्रोडक्शंस ऐड हो जाएंगी, ए बी ए सी, बी ए सी, ए सी, ए बी ए। देन ए सी, capital A, B A, and then the only symbol A. So this is the grammar that we got after eliminating the lambda productions. Now coming to the third simplification, which was eliminating the unit productions. Eliminating unit productions. So any production of a context-free grammar which is of this form, where A, B belong to variables, is called a unit production. ना यूनिट प्रोडक्शन को कैसे हटाना है इसके अभी हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं। सो बेसिकली हमें जितने भी अनडिजायरेबल प्रोडक्शंस हैं उसको हमें इन स्टेप्स में हटाना है, या इन अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया दैट गेट रिड ऑफ सिंप्लीफाई दिस ग्रामर, तो हमें किस ऑर्डर में तीनों प्रोडक्शंस को हटाना है। लेट्स सी दैट। सो रिमूव ऑल द अनडिजायरेबल प्रोडक्शंस यूजिंग द following steps. First is eliminate all the lambda productions. Eliminate all the lambda productions. Second is eliminate all the unit productions. And the third is eliminate all the useless सिंबल्स। तो अगर हमें सिंप्लीफाई करना है ग्रामर को, सबसे पहले हम लैम्डा प्रोडक्शंस हटाएंगे, देन यूनिट प्रोडक्शंस, एंड देन इन द एंड विल रिमूव द यूजलेस सिंबल्स। नाउ लेट्स टेक डिफरेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन सेज शो दैट द टू ग्रामर्स S derives A, B, AB, BA, A derives triple A, B derives AA, BB, and S derives AB. So basically this AB, A, BB, BA and A derives, तो बेसिकली हमें शो करना है कि जो दोनों ग्रामर्स हैं वो आपस में इक्विवेलेंट है, राइट। तो हाउ वी कैन शो, नाउ वी कैन क्लियरली सी बी क्या डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड बी बी।
अगर इस b को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं, देन विल बी लेफ्ट विद दिस ग्रामर ओनली, राइट? सो वी कैन जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन द over here and will be provided with this grammar. So this clearly shows that the two grammars are equivalent. Let's take another question. Now let's take a question on unit production कि कैसे हमें unit productions को हटाना है. Suppose हमें grammar given है S derives AA B, B derives A BB and A derives A B C and B. ना सबसे पहले हमें देखना है इसमें यूनिट प्रोडक्शंस कौन कौन सी हैं. यूनिट प्रोडक्शंस हैं S derives B, B derives A and A derives B. तीनों यूनिट प्रोडक्शंस हैं. सो बेसिकली और इस तरीके से हमें यूनिट प्रोडक्शंस को हटाना है. ये तो सब ग्रामर्स पे अप्लाई, सब सिंप्लीफिकेशन पे भी अप्लाई होता है कि हमारी बेसिक ग्रामर नहीं चेंज होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं S डिराइव कर रहा है B को, B डिराइव कर रहा है A को, A डिराइव कर रहा है B को, राइट? सो बेसिकली कैन वी से S डिराइव जो कर रहा है B को, B डिराइव कर रहा है A को, A डिराइव कर रहा है B को. सो अल्टीमेटली S जो है वो आपको आपके B को भी डिराइव कर रहा है, राइट? तो हम डायरेक्टली से फ्रॉम दिस रिलेशनशिप और फ्रॉम दिस डायग्राम तो हमें यही समझ में आ रहा है कि S जो होता है आपके सिंबल B को भी डायरेक्टली डिराइव कर रहा है. S डिराइव्स B, B डिराइव्स A. तो S जो है आपके A को भी डिराइव कर रहा है, A डिराइव कर रहा है B को, S भी डिराइव कर रहा है B को. नाउ यूनिट प्रोडक्शन हटाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें S जो ये प्रोडक्शन को जनरेट कर रहा है इसको एज इट इज लिख लेते हैं. S डिराइव्स A. अब B लिखने के बजाय हम B की जगह क्या लिखेंगे? उन सारी प्रोडक्शंस को जो B जो है वो जनरेट कर रहा है. B जनरेट क्या कर रहा है? B डिराइव कर रहा है A को, राइट? तो सबसे पहले S डिराइव कर रहा है ये और B को. B की जगह हम लिख देंगे, B की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जो प्रोडक्शंस को डिराइव कर रहा है. B डिराइव कर रहा है A को एंड B को. और A क्या डिराइव कर रहा है? A डिराइव कर रहा है A को BC को. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि S जो है इन तीनों प्रोडक्शंस को डिराइव कर रहा है. तो इन तीनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं. S डिराइव कर रहा है BB को, S डिराइव कर रहा है A को, S डिराइव कर रहा है BC को. तो बिसाइड्स द यूनिट प्रोडक्शंस हमें क्या करना है? उस यूनिट प्रोडक्शन की बजाय जो भी वो प्रोडक्शन जनरेट कर रहे हैं उनको यहाँ पे सारे लिखते जाने हैं. तो दैट इज हाउ वी एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन. अब आते हैं सेकेंड यूनिट प्रोडक्शन पे. B डिराइव्स A. तो A क्या डिराइव कर रहा है वो लिख देते हैं एज इट इज. A डिराइव कर रहा है A डिराइव कर रहा है BC, A डिराइव कर रहा है B. वो हम लिखेंगे नहीं बिकॉज इट्स अ यूनिट प्रोडक्शन एंड B डिराइव्स B जो वो खुद ही कर रहा है. तो इसको एज इट इज लिख देते हैं. देन आते हैं A पे. A डिराइव कर रहा है स्मॉल a डिराइव कर रहा है BC, A डिराइव कर रहा है BB, राइट? So this is, so we have eliminated all the three unit productions from our grammar. Now let's take another question. Suppose हमें question given है S derives X, Y, Z, capital X, Y, Z, Z, X derives capital X, Z, X, capital Y, Z, Y derives Y, 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 X, Z, Z derives Z, Y and Z, small z. So we have to eliminate useless symbols from this grammar. So basically जब क्वेश्चन में गिवन हो सिंप्लीफाई द ग्रामर, तो हम इस ऑर्डर के हिसाब से ग्रामर को सिंप्लीफाई करेंगे. पहले लैम्डा प्रोडक्शंस, देन यूनिट प्रोडक्शंस, देन यूजलेस सिंबल्स. और अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि ये पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन हमें करनी है तो हमें बाकी दो करने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट नीड टू रिमूव द यूजलेस सिंबल्स. तो यूजलेस सिंबल्स हटाने के सबसे पहले क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हम जनरेटिंग है या नहीं. तो x क्या जनरेटिंग है? नो, x इज नॉट जनरेटिंग एनी टर्मिनल स्ट्रिंग. y इज ऑल्सो नॉट जनरेटिंग एनी टर्मिनल स्ट्रिंग. z जनरेट कर रहा है टर्मिनल स्ट्रिंग स्मॉल z को. S भी कोई टर्मिनल स्ट्रिंग, S जनरेट कर रहे हैं किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को. S is also generating a terminal string x, y, z. So the only two non-generating symbols are x and y. So we can remove these two. So these two can be removed and we will be left with grammar S generates x, y, z. ये वाली प्रोडक्शन भी यहाँ से हट जाएगी and z derives
ZY and small z. अब देखते हैं रीचेबिलिटी. नाउ वी कैन क्लियरली सी ये जो Z नॉन टर्मिनल है ये S से तो रीचेबल ही नहीं है, तो इसको भी हम हटा देते हैं. तो हमारे पास क्या बचेगा? S derives XYZ. So this is the only grammar that we are left with. Let's take another example. Suppose we are given with a grammar S derives A, B, small a. A derives B, C, B. Then B derives A, B, non-terminal C. Then C derives A, C, capital B. तो again we have to eliminate useless symbols from this grammar. तो सबसे पहले जनरेटिंग देखते हैं. A जनरेटिंग है बिकॉज नॉन टर्मिनल B को जनरेट कर रहा है. B भी नॉट जनरेटिंग एनीथिंग. C इज ऑल्सो नॉट जनरेटिंग एनी टर्मिनल स्ट्रिंग. S भी जनरेट कर रहा है टर्मिनल स्ट्रिंग को. तो B एंड C आपके नॉन जनरेटिंग सिंबल्स हैं. इन दोनों को हटा देते हैं. इनको हटा के मेरे पास क्या बचेगा? S derives A and A derives B. तो अब हमने B हटा दिया तो ये यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा. तो S सिर्फ A को डिराइव कर रहा है. ये प्रोडक्शन भी हट जाएगी. नाउ रीचेबिलिटी देखते हैं. A भी रीचेबल नहीं है S से, सो विल बी लेफ्ट विद ओनली S derives A. सो दिस इज द फाइनल आंसर. लेट्स टेक अनदर ग्रामर. सपोज हमें ग्रामर गिवन एज S derives AB, AC, A derives A, B, A, B derives BB, A, AA, B, AB, then C derives A, B, CA, A, DB, and D derives B, D, A, C. So eliminate all the useless symbols from this grammar. सबसे पहले हम जनरेटिंग देखते हैं. A जनरेट कर रहा है स्मॉल a को. देन B में अगर हम इस वाले प्रोडक्शन में स्मॉल a को सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारी टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी. तो B इज ऑल्सो जनरेटिंग. C को जनरेट नहीं कर रहा. यहाँ पे भी C आ रहा है. C को जनरेट नहीं कर रहा. D भी को जनरेट नहीं कर रहा. तो C इज ऑल्सो नॉट जनरेटिंग. D इज ऑल्सो नॉट जनरेटिंग. सो वी कैन एलिमिनेट दीज टू प्रोडक्शंस. एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? S derives AB, A derives AAB, BAA, A, and B derives BBA, AAB, and AB. रीचेबिलिटी देखते हैं. S भी रीचेबल, S से A भी रीचेबल है, B भी रीचेबल है. सो दोनों रीचेबल है. तो दिस इज द फाइनल आंसर. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. सपोज हमारे पास ग्रामर गिवन है एज S derives AS, AB, A derives BA, B derives AA. So basically we have to eliminate useless symbols. So A भी कोई टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं जनरेट कर रहा, B भी नहीं कर रहा. तो दोनों ही नॉन जनरेटिंग है. A और B दोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं. अब हम यहाँ पे देखें तो S भी आपका कुछ जनरेट नहीं कर रहा है. S भी आपकी कोई टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं जनरेट कर रहा. तो S, A, B तीनों ही आपके नॉन जनरेटिंग सिंबल्स हैं. तीनों ही कुछ भी नहीं जनरेट कर रहे. सो दिस ग्रामर इज अल्टीमेटली जनरेटिंग नथिंग. वी कैन नॉट जनरेट एनीथिंग फ्रॉम दिस ग्रामर. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज S derives A, B, C. A derives AB, epsilon. B derives AA. C derives C, C, D. ये small c है, ये capital C है. And then D derives DD. So we need to eliminate lambda and unit productions from this grammar. तो सबसे पहले लैम्डा और यूनिट हमें दोनों हटानी है. तो ऑर्डरिंग के हिसाब से भी हम देखें तो सबसे पहले हमारी ऑर्डरिंग में क्या आता है? सबसे पहले हम कौन से हटाएंगे? लैम्डा हटाएंगे, यूनिट प्रोडक्शंस हटाएंगे. सबसे पहले हम हटाएंगे लैम्डा प्रोडक्शंस, देन यूनिट प्रोडक्शंस.
और अगर हमारे पास यूजलेस सिंबल्स भी पूछा हो तो थर्ड्स पे हम फिर यूजलेस सिंबल्स को हटाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से हटाते हैं लैम्डा प्रोडक्शंस। और लैम्डा प्रोडक्शंस हटाने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से सिंबल्स यहाँ पे नलेबल है। तो कौन से सिंबल्स यहाँ पे नलेबल है, कौन से नल सिंबल को जनरेट कर रहे हैं। ए नलेबल है, ए को मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो यहाँ से तो टर्मिनल ए आ रहा है। सी भी आपका नलेबल नहीं है, डी भी नलेबल नहीं है, एस भी नलेबल नहीं है। सो द ओनली सिंबल दैट इज नलेबल इज ए इज नलेबल। तो ए को हम कहाँ कहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे भी ए अपीयर हो रहा है ऑन दी राइट साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा, एस डेराइव्स ए को जब आप नलेबल सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे तो स्मॉल ए ही रह जाएगा, राइट। और स्मॉल ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो नो नीड टू राइट दैट अगेन। बी और सी एज इट इज आ जाएंगे। देन एंड ए वाली प्रोडक्शन भी आपकी एज इट इज आ जाएगी। तो जब हम नलेबल सिंबल के लिए जब हम एप्सिलॉन प्रोडक्शंस हटाते हैं और जो सिंबल्स हमारा नलेबल है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं, तो उस प्रोडक्शन को तो हम पहले लिखते ही हैं, राइट। जिस प्रोडक्शन में वो आ रहा होता है उसको तो लिखते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू को नल सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट। अगर आपने इस प्रोडक्शन को डायरेक्टली हटा दिया तो आपकी ग्रामर ही चेंज हो जाएगी एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट द ग्रामर डज नॉट गेट चेंज्ड। तो पहले हम उस प्रोडक्शन को एज इट इज लिख देंगे एंड उसके बाद उसमें नल वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम एज इट इज इसके साथ लिख देंगे ना। क्योंकि अब मैं इसमें यहाँ पे नल को सब्सटीट्यूट करूँ एक ही जगह को तो मुझे स्मॉल ए ही मिलेगा एंड स्मॉल ए आई हैव ऑलरेडी रिटन, सो नो नीड टू राइट दैट अगेन। देन ए डेराइव्स स्मॉल ए कैपिटल बी, नल हटा देंगे। बी डेराइव्स ए नलेबल है, सब्सटीट्यूट करोगे तो स्मॉल ए मिल जाएगा। देन सी डेराइव्स दिस and D derives this. So this is the answer after eliminating the epsilon productions. Now we have to get rid of the unit productions. So what all unit productions I have? I have S derives BC, S derives B and S derives C. Right? So ये दो हम मेरे पास unit productions हैं. तो इन दो unit productions को हटाने के लिए हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले S derives A और इसको तो as it is लिख देते हैं। S derives B को हटाने के लिए B जो जनरेट कर रहा है उसको हम लिख देंगे। तो B जनरेट कर रहा है आपके A को, कैपिटल A, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए को अभी के लिए लिख देते हैं, बाद में हम A के हटा देंगे। अब C देखते हैं, S जनरेट C का डेराइव कर रहा है C, कैपिटल C, D, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हो गया। तो दोनों यूनिट प्रोडक्शंस हमारी हट गई, बाकी की आपकी वैल्यूज जो है ये एज इट इज आ जाएंगी। A derives AB, B derives capital A small a, then C derives CCD and D derives DD। अब यहाँ पे ये वाला प्रोडक्शन डबलिंग हो रही थी तो उसको हम हटा देते हैं एक एक को। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा आफ्टर एलिमिनेटिंग दी लैम्डा प्रोडक्शंस एंड द यूनिट प्रोडक्शंस फ्रॉम अ ग्रामर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें ग्रामर गिवन एज S derives AAB, AAB, AAAB, then A derives lambda, B derives BBA and lambda. The question says eliminate unit productions. अब इसमें से मुझे यूनिट प्रोडक्शन हटानी है, बट हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ये लैम्डा भी जनरेट कर रहा है। तो यूनिट प्रोडक्शन हटाने से पहले हमें कौन सी प्रोडक्शन हटानी पड़ेगी यहाँ पे? एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं नलेबल वेरिएबल्स। तो ए नलेबल है, बी नलेबल है, एस नलेबल है, नो, क्योंकि ए और बी को नल सब्सटीट्यूट करेंगे तो स्मॉल ए मिल रहा है, तो एस इज नॉट नलेबल, ए एंड बी आर नलेबल। तो लैम्डा प्रोडक्शन हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा? एस डेराइव्स ए बी, पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं। ए को नल सब्सटीट्यूट करा तो ए बी मिला, बी को नल सब्सटीट्यूट करा तो ए मिला, दोनों को नल सब्सटीट्यूट करा तो स्मॉल ए मिला। इस प्रोडक्शन को एज इट इज लिख देते हैं ए बी, बी को नल लेवल सब्सटीट्यूट करा तो स्मॉल ए मिला। सो वी एंड अप विद 6 प्रोडक्शंस आफ्टर एलिमिनेटिंग नल। ए डेराइव्स नल को हम हटा देते हैं। देन बी डेराइव्स बी ए को नल लेवल सब्सटीट्यूट करोगे तो बी मिलेगा। तो ये हमें आंसर मिल गया आफ्टर एलिमिनेटिंग दी लैम्डा प्रोडक्शंस। नाउ वी हैव टू गेट रिड ऑफ द यूनिट प्रोडक्शंस। तो यहाँ पे कोई यूनिट प्रोडक्शंस हैं? नो, देयर आर नो यूनिट प्रोडक्शंस इन दिस ग्रामर, सो दिस इज द फाइनल आंसर।
The next question is remove all unit, lambda and useless productions from the following grammar. तो अब हमें तीनों प्रोडक्शंस को यहां से हटाना है. ग्रामर देखते हैं हमें क्या गिवन है. S derives, then A derives, then B derives, and then C derives this. अब हमें तीनों प्रोडक्शंस को यहां से हटाना है. तो सबसे पहले हम हटाते हैं लैम्डा प्रोडक्शंस को, देन हम हटाएंगे यूनिट प्रोडक्शंस को, देन हम हटाएंगे यूजलेस सिंबल्स को. तो लैम्डा प्रोडक्शंस हटाने के लिए पहले नलेबल वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं. कौन सा वेरिएबल यहाँ पे नल है? ए तो नलेबल है ही, क्लियरली दिख रहा है. बी नलेबल नहीं है, सी इज ऑल्सो नॉट नलेबल, एस इज ऑल्सो नॉट नलेबल. सो ए इज ओनली नलेबल. गेट रिड ऑफ दी ए से हम हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस प्रोडक्शन को पहले एज इट इज लिख देते हैं. ए को नल सब्स्टिट्यूट करा तो क्या मिल जाएगा? सिंगल ए. एंड ए बी बी को एज इट इज लिख देते हैं. देन ए डेराइव्स ए को नलेबल सब्स्टिट्यूट करा तो ए मिला. देन बी डेराइव्स, इसमें ए कहीं नहीं आ रहा, एज इट इज लिख देते हैं. सी डेराइव्स बी. तो नलेबल प्रोडक्शन हटाने के बाद हमें ये वाली ग्रामर मिल गई. नाउ वी नीड टू गेट रिड ऑफ द यूनिट प्रोडक्शंस. यूनिट प्रोडक्शन यहाँ पे कौन सी है? सी डेराइव्स बी. तो जहां पे सी डिराइव कर रहा है बी को, तो बी की जगह हम क्या लिख देंगे? जो भी बी डिराइव कर रहा है उसको लिख दो, बी 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 सी. तो आपकी यूनिट प्रोडक्शन हट गई. और तो कोई यूनिट प्रोडक्शन यहाँ पे है नहीं. थर्ड है यूजलेस सिंबल. यूजलेस सिंबल के लिए हम देखेंगे कि कौन सा जनरेटिंग है और कौन सा जनरेटिंग नहीं है. तो कैपिटल ए जनरेट कर रहा है ए को, टर्मिनल है, जनरेटिंग है. बी जनरेट कर रहा है, बी किसी टर्मिनल को जनरेट नहीं कर रहा, तो बी इज नॉन जनरेटिंग. सी भी किसी टर्मिनल को जनरेट नहीं कर रहा, सी इज ऑल्सो नॉन जनरेटिंग. एस जनरेट कर रहा है स्मॉल ए को, तो एस इज जनरेटिंग. तो बी सी आपके दोनों ही नॉन जनरेटिंग सिंबल्स हैं. दोनों को हम हटा देते हैं. दोनों ही टर्मिनल स्ट्रिंग्स को नहीं जनरेट कर रहे, तो ये दोनों यहाँ से हट गई. और आपके पास ग्रामर क्या बचेगी? और आप ये बी भी यहाँ से हट जाएगा. तो मेरे पास ग्रामर बचेगी एस डेराइव्स दिस एंड ए डेराइव्स. नाउ रीचेबिलिटी देखते हैं. एस तो ए तो रीचेबल है एस से, तो ये हमारी फाइनल ग्रामर है आफ्टर रिमूविंग ऑल द 3 यूनिट, लैम्डा एंड यूजलेस प्रोडक्शंस फ्रॉम आवर ग्रामर. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज द नॉर्मल फॉर्म्स. सो अब हमने ग्रामर को सिंप्लीफिकेशन देख ली कि ग्रामर को हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है. नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म्स को. तो टीओसी में हमारे पास 2 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं. एक तो होती है सीएनएफ फॉर्म और एक होती है जीएनएफ फॉर्म. सीएनएफ स्टैंड्स फॉर कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड जीएनएफ स्टैंड्स फॉर ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म्स तक आने से पहले हमारा पहला स्टेप होता है ग्रामर को सिंप्लीफाई करना. तो सबसे पहले देखते हैं ग्रामर को सिंप्लीफाई. तो अब हमने कर लिया. अब हम सबसे पहले देखते हैं सीएनएफ फॉर्म क्या होती है. तो सीएनएफ फॉर्म ये कहती है अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, a context-free grammar CFG is in CNF Chomsky normal form if all the productions are of the form A derives BC और A derives A. तो BC यहाँ पे A BC यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स हैं एंड स्मॉल a यहाँ पे टर्मिनल है. तो वेयर A, B, C आर वेरिएबल्स कह सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनल्स कह सकते हैं, एंड A इज टर्मिनल. तो कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आपकी CNF फॉर्म में, कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में तब होगी अगर उस ग्रामर की जितनी भी प्रोडक्शंस है वो इस फॉर्म की हो, जहां पे एक नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल को डिराइव कर रहे हो या फिर एक नॉन टर्मिनल किसी टर्मिनल को डिराइव कर रहा हो. तभी हम कहेंगे कि वो ग्रामर आपकी CNF में है. अगर वो CNF में है तो ठीक है, नहीं तो हम उस ग्रामर को कन्वर्ट करेंगे CNF फॉर्म में.
नाउ CNF में करने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि ग्रामर में कोई भी ना तो यूनिट प्रोडक्शंस हो, ना लैम्डा प्रोडक्शंस हो, ना ही कोई यूजलेस सिंबल्स हो। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर मेरे पास कोई ग्रामर गिवन है, S derives ASA एंड A derives SAB, राइट। तो क्या ये ग्रामर CNF में है? तो इस ग्रामर में हम देख सकते हैं कोई यूनिट नहीं है, कोई लैम्डा नहीं है एंड कोई यूजलेस सिंबल्स नहीं है। नाउ S डिराइव कर रहे हैं दो नॉन टर्मिनल और एक टर्मिनल को, ये वाली प्रोडक्शन भी डिराइव कर रही है दो नॉन टर्मिनल से एक टर्मिनल को। तो यस, दिस ग्रामर इज इन CNF फॉर्म। बट अगर मैंने कोई ग्रामर ली लाइक दिस फॉर्म, S derives AS, AAS एंड S derive एंड A derives लेट्स से AA, सो ना तो ये आपकी CNF में है और ना ही ये आपकी CNF में, बिकॉज यहाँ पे 3 नॉन टर्मिनल्स जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पे 2 टर्मिनल्स जनरेट हो रहे हैं। सो दिस ग्रामर इज नॉट इन द CNF फॉर्म, दिस ग्रामर इज इन द CNF फॉर्म। और अगर कोई ग्रामर CNF में नहीं होती तो हमारा स्टेप क्या होता है, उसको CNF में कन्वर्ट करना। तो अब हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ग्रामर आपकी CNF में नहीं है और हमें उसको कन्वर्ट करना है। सो हाउ डू वी कन्वर्ट? So the question is, convert the grammar S derives ABA, A derives AAB and B derives AC into CNF। ना CNF में करने से पहले सबसे पहले हमें देखना है कि कोई इसमें यूनिट प्रोडक्शंस नहीं हो, लैम्डा नहीं हो और कोई भी यूजलेस सिंबल्स नहीं हो। तो कोई इसमें सबसे पहले लैम्डा प्रोडक्शंस देखते हैं, कोई लैम्डा प्रोडक्शंस नहीं है। देन यूनिट प्रोडक्शंस देखते हैं, कोई यूनिट प्रोडक्शंस नहीं है। यूजलेस सिंबल्स देखें तो A, so there is a correction, this is not capital B, this is small b। तो yes, now A जनरेट कर रहे हैं टर्मिनल स्ट्रिंग को, B भी जनरेटिंग है, हम A की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड A एंड B दोनों जनरेटिंग है तो S इज ऑल्सो जनरेटिंग। तो तीनों आपके जनरेटिंग है एंड तीनों ही आपके दोनों ही सिंबल्स आपके रीचेबल है फ्रॉम दिस चार्ट सिंबल। तो यस, ना तो इस ग्रामर में कोई भी यूनिट प्रोडक्शंस है, ना कोई लैम्डा प्रोडक्शंस है और ना ही कोई यूजलेस सिंबल्स है। नाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कंटेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स। इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स। तो हमें क्या करना है, जो भी प्रोडक्शन आपकी CNF फॉर्म के हिसाब से नहीं है वहां पे हमें न्यू सिंबल्स को, वेरिएबल्स को ऐड करते जाना है। तो बेसिकली CNF फॉर्म में होने के लिए ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए, दैट एक नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल्स को डिराइव कर सकता है और एक नॉन टर्मिनल किसी एक टर्मिनल स्ट्रिंग को ही डिराइव कर सकता है। तो दिस शुड बी द कंडीशन। तो सबसे पहले पहली प्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे A, तो ये जो A है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। सो इन प्लेस ऑफ दिस A हम कोई नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लेट्स से इन प्लेस ऑफ दिस A मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया एक नॉन टर्मिनल B विद अ सबस्क्रिप्ट A। B विद अ सबस्क्रिप्ट A का क्या मतलब है, हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, दैट इज अप टू अस। मैंने यहाँ पे सिर्फ नोटिफाई करने के लिए कि ये हम इस A को रिप्लेस कर रहे हैं विद दिस नॉन टर्मिनल B फॉलोड विद अ सबस्क्रिप्ट A। इसी वजह से आई टेकन दिस सिंबल। हम चाहे तो X, Y, Z कोई भी नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बेसिकली हम उन वेरिएबल्स को चेंज करते हैं यहाँ पे जो हमारे CNF फॉर्म में नहीं होते हैं। Now let's see the next production. Next production है A derives small a, small b, right? बट अकॉर्डिंग टू कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म सिर्फ एक ही टर्मिनल अलाउड होता है जो नॉन टर्मिनल डिराइव कर सकता है। तो हम इन तीनों टर्मिनल्स को रिप्लेस कर सकते हैं विद 3 नॉन टर्मिनल्स, राइट। तो हम इसकी जगह क्या वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इस A को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस BA ओनली, अगेन BA ओनली एंड इस B की जगह हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनल B विद द सबस्क्रिप्ट स्मॉल b। अगेन हम कोई भी नाम इन्हें दे सकते हैं, देयर इज नो एनी कंपल्शन कि किसी पर्टिकुलर टर्मिनल के लिए हमें कोई पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल ही यूज करना है। देन B डिराइव्स, अगेन B डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल को और एक टर्मिनल को। तो हम इस टर्मिनल को रिप्लेस कर सकते हैं विद अ डिफरेंट नॉन टर्मिनल। तो A को एज इट इज लिख देते हैं, C की जगह रिप्लेस कर देते हैं B विद अ सबस्क्रिप्ट C। और जो भी हमने 3 नॉन टर्मिनल्स इंट्रोड्यूस किए वो किस टर्मिनल को डिराइव कर रहे हैं वो लिख देते हैं। BA डिराइव्स A, BB डिराइव्स B एंड BC डिराइव्स C। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 जहाँ पे हमने न्यू वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया है।
नाउ कमिंग टू स्टेप 2 ऑफ द कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जो ये कहता है कि अब हर एक नॉन टर्मिनल सिर्फ दो ही नॉन टर्मिनल्स को डिराइव कर सकता है। तो जो दो नॉन टर्मिनल्स हैं, हर एक प्रोडक्शन में सिर्फ दो ही नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए। तो बाकी के जो जितने नॉन टर्मिनल्स हैं उन्हें हमें रिप्लेस करना है विद अ डिफरेंट नॉन टर्मिनल। कैसे करेंगे वो? तो इसको सबसे पहले एज इट इज लिख लेते हैं। जो हमारा स्टेप 1 का रिजल्ट है, S derives AB BA, A derives BA BA BB, then B derives A B C, then BA derives A, then BB derives B, then BC derives C। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? अब या तो हम इन दो नॉन टर्मिनल्स की जगह में कोई नॉन टर्मिनल रिप्लेस कर दूं, या फिर इन दो नॉन टर्मिनल्स की जगह में कोई नॉन टर्मिनल रिप्लेस कर दूं। हम कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से, दैट इज अप टू अस। तो लेट्स से मैंने ए को एज इट इज रखा और इस बी बी ए को रिप्लेस कर दिया विद अ नॉन टर्मिनल, लेट्स से D1। तो D1 है मेरा बी बी ए। दिस इज माई फर्स्ट न्यू वेरिएबल जो हमने स्टेप 2 में इंट्रोड्यूस किया है। देन सेकेंड प्रोडक्शन पे आते हैं। यहाँ पे भी 3 नॉन टर्मिनल्स हैं, अगेन हमें रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस कर देते हैं। लेट्स से या तो आप इन दो को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लो या इन दो को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लो, कोई भी हम चूज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने चूज किया बी ए को एज इट इज रखा और इन दोनों को रिप्लेस कर दिया विद अ नॉन टर्मिनल, लेट्स से D2। सो D2 है मेरा B विद अ सबस्क्रिप्ट A, B विद अ सबस्क्रिप्ट B। थर्ड प्रोडक्शन पे आता है। थर्ड प्रोडक्शन मेरी कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से ये दो नॉन टर्मिनल्स ही हैं, कुछ रिप्लेस करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। बाकी के जितने भी हैं वो भी कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से ही हैं। हर एक नॉन टर्मिनल एक ही टर्मिनल को जनरेट कर रहा है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब जितनी भी प्रोडक्शन हमारे पास मिली है हमें स्टेप 2 में, वो सारी कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से है। हर एक प्रोडक्शन में या तो दो नॉन टर्मिनल्स होंगे या एक नॉन टर्मिनल एक ही टर्मिनल को जनरेट कर रहा होगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग, दिस इज ऑल्सो, दिस ऑल्सो, दिस एंड दिस। सो दिस is the final answer which is according to the Chomsky normal form. Coming to the next question now. The next question says, again हमें convert करना है CNF में। S derives AB AB, then A derives AAB lambda, then B derives BBA। तो CNF में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले उसमें से हमें एलिमिनेट करनी है लैम्डा प्रोडक्शंस, देन यूनिट प्रोडक्शंस, देन यूजलेस सिंबल्स। तो सबसे पहले लैम्डा प्रोडक्शंस हटाते हैं। कौन से वेरिएबल्स यहाँ पे नलेबल है? A नलेबल है, देन ओनली A इज नलेबल, B भी नलेबल नहीं है, एंड S इज ऑल्सो नॉट नलेबल। तो A को नलेबल वेरिएबल है, इसको हटाते हैं। AB को एज इट इज लिख देते हैं। A को नलेबल रखेंगे तो B विल बी लेफ्ट, A भी एज इट इज आ जाएगा। देन A वाली प्रोडक्शन में A भी एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज अ स्मॉल b, दिस इज नॉट अ कैपिटल B, दिस इज अ स्मॉल b, A B। देन B वाली प्रोडक्शन में BBA एज इट इज लिख देते हैं, नलेबल रखेंगे तो हमारे पास BB और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर एलिमिनेटिंग द लैम्डा प्रोडक्शंस। नाउ लेट्स एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शंस। कोई यूनिट प्रोडक्शन है इस ग्रामर में? सो यस, वी हैव वन यूनिट प्रोडक्शन, S derives B। तो S derive B को हटाने के लिए हम जो प्रोडक्शन B जनरेट कर रहे हैं उनको B की जगह लिख देते हैं। तो S derives AB, S derives small a capital B, BBA BB, then A derives AAB, then B derives BBA and BB। यूनिट प्रोडक्शन हट गई। यूजलेस सिंबल के लिए A भी जनरेटिंग है, B भी जनरेटिंग है, S इज ऑल्सो जनरेटिंग, सो देयर आर नो यूजलेस सिंबल्स इन दिस ग्रामर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो पहले इस रिजल्ट को लिख लेते हैं, देन कन्वर्ट करते हैं इसे CNF में। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट था S derives AB स्मॉल a कैपिटल B, BBA BB, A derives AA B, B derives B, B, A and BB।
स्टेप 1 कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का क्या कहता है, इंट्रोड्यूस करना न्यू वेरिएबल्स। तो CNF फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी प्रोडक्शन उसको वायलेट कर रही है। ये प्रोडक्शन सेटिस्फाई कर रही है, दो नॉन टर्मिनल्स हैं। ये प्रोडक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रही, एक टर्मिनल है एक नॉन टर्मिनल है, तो टर्मिनल को रिप्लेस कर देता है विद अ नॉन टर्मिनल। लेट्स आई टेक द वेरिएबल s विद अ सब्सक्रिप्ट e b। देन ये प्रोडक्शन भी नहीं सेटिस्फाई कर रही, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देन ये प्रोडक्शन भी नहीं सेटिस्फाई कर रही, sb। देन SA हमने क्या लिया है, SA लिया है हमने स्मॉल a, SB हमने लिया है b। सेकेंड प्रोडक्शन पे आते हैं, A डिराइव्स AAB, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं SA एंड SB। देन B वाले पे आते हैं, B डिराइव्स, दोनों ही प्रोडक्शंस नहीं सेटिस्फाई कर रही, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं SA देन SB। तो ये A तो एज इट इज ही लिख देते हैं, दिस इज A एंड SB। So this is the first step after introducing the new variables. Now step 2 क्या कहता है, स्टेप 2 में हमें कन्वर्ट करना है CNF में। तो जहाँ पे भी दो नॉन टर्मिनल से ज़्यादा है उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। सो लिखते जाते हैं अब स्टेप 2 का रिजल्ट। स्टेप 2 सबसे पहले S डिराइव्स AB, कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। देन आता है SAB, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, SAB दो नॉन टर्मिनल्स ही है, एज इट इज लिख देते हैं SAB। देन SBA। अब दिस इज अप टू अस कि हमें किसको चेंज करना है, या तो हम इन दो की जगह एक नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर लें या इन दो की जगह कोई नॉन टर्मिनल चेंज कर लें। तो लेट्स से मैंने SB को एज इट इज लिख दिया और उसकी जगह इंट्रोड्यूस कर दिया D1। तो D1 लिख लेते हैं, मैंने क्या लिया है, D1 मैंने लिया है SBA। देन SB कोई चेंज नहीं आएगा इसमें भी, इसको भी एज इट इज लिख देते हैं SB। देन सेकेंड वाले नॉन टर्मिनल पे आते हैं, तो ये दोनों एज इट इज लिख देते हैं, दोनों कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से हैं। SA डिराइव्स A, SB डिराइव्स B। देन आते हैं A डिराइव्स SA SB। तो अगेन अप टू अस हमें कौन से नॉन टर्मिनल्स को चेंज करना है। लेट्स से मैंने लिया A डिराइव्स SA एज इट इज D2 एंड D2 डिराइव्स SA SB। Now coming to the last non-terminal B derives SBA। तो SBA की जगह ये हमारी यहाँ पे भी प्रोडक्शन थी, तो जो हमने इसके लिए चेंज किया वही हम इसके लिए भी कर देते हैं। B derives SB D1 एंड दूसरा क्या है उसमें, दूसरा है SB, तो वो उसके हिसाब से ही है, नो नीड टू चेंज। So this is our final answer after converting it into Chomsky normal form. So now जितने भी productions हैं इसमें वो सारी Chomsky normal form के हिसाब से हैं। The next normal form is the Grayback normal form. Grayback normal form says that a context-free grammar is said to be in Grayback normal form if all productions have the form A derives AX where A belongs to terminal and X belongs to some non-terminal. So कोई भी ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में तब होगी अगर उसकी सारी प्रोडक्शंस ऑफ दिस फॉर्म, जहाँ पे कोई भी नॉन टर्मिनल डिराइव कर रहा है एक टर्मिनल को फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स। तो यहाँ पे दिस कैन बी एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स। X belongs to V star. V star means it can have any number of non-terminals.
तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास ग्रामर गिवन है एज S derives AB, A derives AA, BB, B and B derives B। अब ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारी कंडीशन क्या कहती है कि जो भी नॉन टर्मिनल है पहला सिंबल उसका टर्मिनल होना चाहिए, उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं, कैन हैव एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। सो अब हमें फर्स्ट प्रोडक्शन इसमें देखते हैं, S derives AB, तो क्लियरली ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं है, पहला जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो टर्मिनल से होनी चाहिए, तो हम A को रिप्लेस कर देते हैं ऐसी प्रोडक्शन से जो उसकी स्टार्टिंग टर्मिनल से हो रही हो। तो हम लिख सकते हैं इसको S derives, इस A को अगर मैं रिप्लेस कर दूं AA से AAB, राइट, एक बार हमने इस वाले सिंबल से रिप्लेस कर दिया, एक बार इस वाले सिंबल से कर देते हैं BBB, और एक बार स्मॉल b से कर देते हैं, राइट। अब ये तीनों प्रोडक्शंस ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग हो गई, पहला टर्मिनल है, उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं, ए भी दोनों नॉन टर्मिनल है, बी भी दोनों नॉन टर्मिनल है, बी भी नॉन टर्मिनल है, तो पहली प्रोडक्शन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड प्रोडक्शन जो है ए डेराइव्स ए ए, बी बी बी, ये ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही है, तीनों प्रोडक्शंस इसकी ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, बट ये कंडीशन कंपल्सरी नहीं है कि कोई नॉन टर्मिनल होना जरूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो अगर ये नहीं है यहाँ पे तो तभी वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन बी डिराइव्स बी, सो दिस all the three productions are according to the Grayback normal form. Let's take one more question on Grayback normal form. S derives AB, AS, AAS. GNF में कन्वर्ट करने के लिए पहली कंडीशन देखते हैं, टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ पे नॉन टर्मिनल होना चाहिए, तो इस B को हम रिप्लेस कर देते हैं विद अ नॉन टर्मिनल, लेट्स से कैपिटल B, और यहाँ पे लिख देते हैं B डिराइव्स स्मॉल b। सेकेंड प्रोडक्शन ग्रे बैक के अकॉर्डिंग है, नो नीड टू चेंज। थर्ड प्रोडक्शन में दो टर्मिनल्स आ रहे हैं, एक ही आना चाहिए, तो इस A को रिप्लेस कर देते हैं लेट्स से विद अ कैपिटल A, एंड A डिराइव कर रहा है A। सो नाउ ऑल द प्रोडक्शंस आर अकॉर्डिंग टू द GNF. So this was all about the two normal forms, CNF and GNF. So that was all about this video. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.